عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج کی اس آن لائن ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، 12ویں جماعت علم معاشیات کا چوتھا سبق جو ہے ہمارا تجزیہ ریسرچ سپلائی انالیسس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ہم نے اس سے قبل بہت سارے نکات کا مطالعہ کیا ہے، آج ہم لا آف سپلائی یعنی قانون رسد کا مطالعہ کریں گے۔ قانونی رسد کا مطالعہ کریں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ نے سابقہ چیپٹرز کے اندر مختلف قوانین کا مطالعہ کیا ہے اور ان قوانین میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ معاشیات کا کوئی بھی قانون جو ہے وہ شرطیہ ہوتا ہے، چند شرائط ہوتی ہیں، ان شرائط کی موجودگی میں یہ قوانین جو ہے صحیح ثابت ہوتے ہیں اور شرائط کی عدم موجودگی میں یہ قوانین جو ہے صحیح ثابت نہیں ہوتے۔ بالکل اسی طرح قانونی رسد بھی ہے، قانونی رسد بھی اسی طرح ہے۔ قانونی رسد جیسا کہ دیگر باتیں حسب معمول رہے، یعنی دیگر باتیں میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہ ہو، دیگر باتیں جو ہے معمول کے مطابق رہے، ان میں کسی قسم کی تبدیلی یا چینجز نہ ہو۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ دیگر باتیں حسب معمول قانون بیان کرنے سے پہلے یہ جملہ لکھا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون رسد بھی ایک شرطیہ قانون ہے۔ مختلف مفروضات کی بنیاد پر یہ قانون جو ہے صحیح ثابت ہوتا ہے، ورنہ یہ قانون جو ہے صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، قانونی رسد کو ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ دیگر باتیں معمول کے مطابق رہیں یا دیگر باتیں جو کہ تو رہیں، ان میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہ ہو۔ other thing remains constant، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں other things remains constant۔ تو جب شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی شے کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو شے کی رسد کیا ہوتا ہے؟ شے کی رسد پھیلتی ہے، اور جب شے کی قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے، شے کی قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے تو شے کی رسد سکڑتی ہے۔ تو دیگر باتیں حسب معمول رہے، یا اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ دیگر باتیں حسب معمول رہے۔ دیگر باتیں حسب معمول رہے، جب شے کی قیمت کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو شے کی رسد جو ہے پھیلتی ہے، اور جب کسی شے کی قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے تو اس کی رسد جو ہے سکڑتی ہے۔ یہ رسد کا قانون ہے۔ تو رسد کے قانون کو سمپلی ہم اس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ دیگر باتیں حسب معمول رہے، جب شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو رسد جو ہے پھیلتی ہے، یعنی جب پرائس انکریز ہوتی ہے تو سپلائی بھی انکریز ہوتی ہے، اور جب پرائس ڈیکریز ہوتی ہے تو سپلائی بھی ڈیکریز ہوتی ہے۔ تو یہ کنسیپٹ یعنی کہ سپلائی بھی ڈیکریز ہوتی ہے، یعنی پرائس اور سپلائی کے درمیان جو ہے کیا ہے؟ ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے، براہ راست تعلق ہے، ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، سمپلی ہم اس کو اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ قانون رسد، اس قانون کو بھی ڈاکٹر مارشل نے پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر مارشل کے مطابق دیگر باتیں حسب معمول رہیں، جب شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو شے کی رسد جو ہے پھیلتی ہے، اور جب شے کی قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے تو شے کی رسد جو ہے سکڑتی ہے۔ یعنی جب قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو عاجل رسد میں اضافہ کرتا ہے، اور جب قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے تو عاجل رسد کو کم کر دیتا ہے۔ یعنی قیمت اور رسد دونوں ایک ہی سمت میں حرکت کرتے ہیں۔ جب قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، پرائس انکریز ہوتی ہے تو سپلائی انکریز ہوتی ہے، اور جب پرائس ڈیکریز ہوتی ہے تو سپلائی جو ہے ڈیکریز ہوتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت اور رسد ایک ہی رخ پر حرکت، ایک ہی سمت میں حرکت کرتے ہیں، ایک سیم ڈائریکشن میں حرکت کرتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت اور رسد کے درمیان براہ راست تعلق ہے، ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے۔ تو ڈاکٹر مارشل کے مطابق دیگر باتیں حسب معمول رہیں، جب شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو شے کی رسد پھیلتی ہے، اور جب شے کی قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے تو شے کی رسد جو ہے سکڑتی ہے۔ قیمت اور رسد کے درمیان براہ راست تعلق ہے، جسے ہم اس قانون کو ہم جدول اور ڈائیگرام کے ذریعے بھی واضح کر سکتے ہیں۔ دیکھیں گے
दूसरी अहम बात यहाँ पर यह है कि इस कानून को अलामती तौर पर इस कानून का इज़हार इस तरह से किया जाता है s सफिक्स x इज इक्वल टू फंक्शन ब्रैकेट p सफिक्स x। यहाँ पर s x है, x शय की रसद है, x शय की रसद है ये। एक जो है इसको उर्दू में तफाउल कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है, और p सफिक्स x जो है px जो है x शय की कीमत है, कीमत है। तो इस तरह से अलामती तौर पर इसका इज़हार इस तरह से किया जाता है एस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ब्रैकेट पी एक्स ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से इसका इज़हार किया जाता है एस एक्स एक्स शय की रसद है, एफ जो है तफाउल है, पी एक्स जो है एक्स शय की कीमत है। तो इसको इस तरह से अलामती तौर पर इस कानून का इज़हार किया जाता है। अब इस कानून को हम जदोल और डायग्राम के जरिए वाज़ेह कर सकते हैं। तो देखेंगे हम जदोल और डायग्राम के जरिए हम किस तरह से वाज़ेह कर सकते हैं। पहला कॉलम हम लेंगे कीमत का, कीमत यहाँ पर है, कीमत जाहिर की गई है। दूसरा कॉलम जो होगा हमारा क्या होगा, रसद का, कीमत रुपीस में जाहिर की गई है और रसद जो है किलोग्राम में जाहिर की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, इस तरह से जदोल तरतीब दे सकते हैं हम कीमत और रसद। जब कीमत 10 थी, कीमत 10 से 20 हुई, 20 से 30 हुई, बराबर है। अब यहाँ पर देखेंगे 10, 20 और 30, या इसको केजी की बजाय आप टन्स में ले सकते हैं, के टन्स में ले सकते हैं। तो अब देखेंगे जदोल की मदद से हम इसको वाज़ेह कर सकते हैं इस कानून को, क्योंकि जदोल बनाते वक्त हमारा ये कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट होना चाहिए, प्राइस, व्हेन प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, व्हेन प्राइस डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज, यानी कीमत में इजाफे से रसद में इजाफा होता है और कीमत में कमी से रसद में कमी वाक़ होती है। तो ये कंसेप्ट को सामने रखते हुए आप यहाँ पर जदोल बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर जदोल में जो ली गई है कीमतें वही कीमत हो, आप अपनी तरफ से भी कीमतें यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन इस कंसेप्ट का ख्याल रखना है आपको कि प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई इंक्रीज होता है, प्राइस डिक्रीज होती है तो सप्लाई डिक्रीज होता है। तो हमने जदोल बनाया है, जदोल को अब यहाँ पर देखेंगे हमारे जदोल के अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर कीमत जो है रुपीस में जाहिर की गई है, शय की कीमत है, शय की कीमत जो है 10, 20, 30 है। उसी तरह से रसद टन्स में जाहिर की गई है, तो यहाँ पर रसद दी गई है 10 टन, 20 टन, 30 टन। तो इस तरह से अब जदोल को हम वाज़ेह कर सकते हैं या जदोल की हम वजाहत कर सकते हैं कि जब शय की कीमत 20 रुपए पर केजी थी, यानी जब शय की कीमत 20 रुपए पर केजी थी तो आजिर जो है 20 टन की रसद करता था, और जब शय की कीमत 20 से कम होकर 10 रुपए पर केजी हो गई तो आजिर की रसद भी 20 से कम होकर 20 टन से कम होकर 10 टन हो गई। इसी तरह से जब शय की कीमत में इजाफा हुआ, 20 से बढ़कर 30 हो गई, यहाँ पर देखेंगे 30 हो गई, तो आजिर की रसद भी 20 से बढ़कर 30 टन हो गई। यानी जब शय की कीमत में इजाफा होता है तो रसद में इजाफा होता है, और जब शय की कीमत में कमी वाक़ होती है तो आजिर की रसद में कमी वाक़ होती है। अब ये जो है कंसेप्ट जो है कि शय की कीमत में इजाफे से रसद में क्यों इजाफा होता है और शय की कीमत में कमी से रसद में क्यों कमी वाक़ होती है, इसकी वजाहत हम साबिक़ा वीडियो में कर चुके हैं। एक बार फिर उसे रिपीट किया जा रहा है यहाँ पर कि एक आजिर का मकसद, एक आजिर, एक प्रोड्यूसर जो होता है, एक प्रोड्यूसर या एक पैदाकार जिसको हम कहते हैं, जो अशिया खिदमात की पैदावार करता है, उसका मकसद ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना उसका मकसद होता है। जब शय की कीमत ज्यादा होती है तो वो रसद ज्यादा करता है, यानी ज्यादा कीमत पर उसका नफा ज्यादा होता है, यानी मुनाफे में इजाफा होता है। और जब शय की कीमत कम होती है तो वो जरूरत के मुताबिक रसद करता है, जरूरत के मुताबिक रसद करता है, ताकि आने वाले दिनों में जब कीमत में इजाफा होगा तो ज्यादा रसद करने के काबिल हो सके, काबिल रह सके या हो सके, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब कीमत ज्यादा होगी तो वो ज्यादा मुनाफा कमा सके। तो ये एक आजिर का मकसद होता है। एक आजिर जो होता है उसका मकसद जो है बेशतरीन मुनाफा होता है। बेशतरीन मुनाफे से मुराद यहाँ पर यह है कि एक आजिर का मकसद जो होता है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना होता है। एक आजिर का मकसद कतई
समाज की खिदमत करना नहीं होता, बल्कि उसको उसका मकसद जो होता है मुनाफा कमाना होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा किस तरह से कमा सकता है, एक आजिर का यही मकसद होता है। तो आजिर जो होता है ज़्यादा कीमत पर रसद ज़्यादा करता है और कम कीमत पर रसद कम करता है। तो जदोल से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जब कीमत में इजाफा होता है, यानी कीमत 20 से 30 होती है, तो रसद भी 20 टन से 30 टन हो जाती है, यानी कीमत में इजाफे से रसद में इजाफा होता है। और जब कीमत कम होती है, शहद की 20 से कम होकर 10 हो जाती है, तो रसद भी 20 से कम होकर 10 टन से हो जाती है, यानी रसद में भी कमी, कीमत कम पर रसद कम होती है। जो इस बात को वाज़ेह करता है, इस बात की वजाहत करता है कि कीमत और रसद के दरमियान जो है बराह रास्त ताल्लुक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अजीज तलबा और तालिबात, ये थी जदोल की वजाहत। अब हम जदोल की मदद से डायग्राम भी बना सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर डायग्राम इस तरह से बनेगा इसका। ये OX एक्सिस है और ये OY एक्सिस है। OY एक्सिस पर रसद को जाहिर किया गया है, सप्लाई को जाहिर किया, कीमत को जाहिर किया गया है, कीमत को जाहिर किया गया है, और OX एक्सिस पर रसद को जाहिर किया गया है। तो अजीज तलबा और तालिबात, जैसा कि यहाँ पर रसद को जाहिर किया गया है, रसद कितनी है 10, 20, 30। तो हम इस तरह से लेंगे 10, 20 और ये 30। अब यहाँ पर कीमत भी 10, 20, 30। 10, 20, 30। अब हम इस जदोल में देखेंगे कि जदोल में जब कीमत 10 रुपए पर केजी थी, तो रसद क्या थी 10 केजी थी। तो ये जदोल है, कीमत 10 ये है OY एक्सिस पर। अब ये कीमत 10 थी तो रसद 10। उसी तरह से कीमत जब 20 रुपए पर केजी हुई तो रसद भी 20 टन हो गई। 20 कीमत पर रसद जो है 20, ये देखेंगे इस तरह से। इसी तरह से 30 रुपए पर रसद जो है 30 टन हो गई, 30 टन हो गई, इस तरह से। अब इन तमाम नुकात को अगर हम मिलाएं तो क्या हासिल होगा हमें, रसद का खत हासिल होगा, जिसको SS से जाहिर किया जाता है। शक्ल में SS जो है रसद का खत है, रसद का खत है, यानी रसद का खत जिसको सप्लाई कर्व कहते हैं, रसद का खत है। तो अजीज तलबा और तालिबात, अब इस डायग्राम को भी हम वाज़ेह कर सकते हैं कि कीमत जब 20 रुपए पर केजी थी तो रसद 20 टन थी। कीमत 20 से कम होकर 10 हुई तो रसद भी 20 से कम होकर 10 हो गई। कीमत 20 से बढ़कर 30 हुई तो रसद भी 20 से बढ़कर 30 हो गई। और शक्ल में इन तमाम नुकात को अगर मिलाया जाए तो एक खत हासिल होता है जिसको SS कहा जाता है। SS जो है ये खत है, ये नीचे से ऊपर की जानिब ढलान बनाता है, दाएं से बाएं नीचे से ऊपर की जानिब ढलान बनाता है, या इसको दूसरे अल्फाज में पॉजिटिव स्लोप बनाता है, पॉजिटिव स्लोप बनाता है, यानी मज़बूत ढलान बनाता है। तो अजीज तलबा और तालिबात, शक्ल में SS जो है रसद का खत है, रसद का खत है जो दाएं से बाएं नीचे से ऊपर की जानिब ढलान बनाता है। तो ये था रसद का कानून। इस तरह से हम इसको वाज़ेह कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर 3-4 नुकात, पहले रसद का कानून की वजाहत करना है आपको। रसद का कानून क्या है, दीगर बातें इसमें मामूल रहे। जब शय की कीमत में इजाफा होता है तो रसद फैलती है, और जब शय की कीमत में कमी वाक़ होती है तो रसद जो है सुकड़ती है, रसद जो सुकड़ती है। तो अब यहाँ पर इस कीमत और रसद के दरमियान जो है बराह रास्त ताल्लुक है, बराह रास्त ताल्लुक है। और कीमत इस कानून की वजाहत हम जदोल के जरिए कर सकते हैं। तो जदोल इस तरह से बनेगा, कीमत एक कॉलम में कीमत को जाहिर किया जाएगा, दूसरे कॉलम में रसद को जाहिर किया गया है। कीमत को रुपीस में जाहिर किया गया है, रसद को टन में जाहिर किया गया है। जब कीमत 20 रुपए थी तो इस तरह से जदोल की भी आप वजाहत कर सकते हैं कि जब कीमत 20 थी तो रसद 20 टन थी। कीमत 20 से कम होकर 10 हुई तो रसद भी 20 टन से कम होकर 10 टन हो गई। और जब कीमत 20 से बढ़कर 30 हुई तो रसद भी 20 टन से बढ़कर 30 टन हो गई। यानी कीमत में इजाफे से रसद में इजाफा होता है, कीमत में कमी से रसद में कमी वाक़ होती है। जदोल की मदद से हम डायग्राम बना सकते हैं। तो डायग्राम इस तरह से है, OY एक्सिस पर OY एक्सिस या OY महवर पे लिख सकते हैं आप। OY महवर पर कीमत को जाहिर किया गया है। OX महवर पर किसको जाहिर किया गया है, OX महवर पर रसद को जाहिर किया गया है। तो इन तमाम
तो जब कीमत 10 थी तो इस तरह से इन तमाम नुकात को जब हमने मिलाया तो हमें क्या हासिल हुआ, एस जो है रसद का खत है जो दाएं से बाएं ऊपर से नीचे की जानिब ढलान बनाता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस कानून की वजाहत से पहले यहाँ पर ये बात वाज़ेह की गई कि दीगर बातें हस्बे मामूल रहे। वो दीगर बातें क्या है, वो दीगर बातें इस कानून की शराइत हैं और उन शराइत की मौजूदगी में ये कानून सही साबित होता है। कौन सा कानून कि कीमत में इजाफे से रसद में इजाफा होता है और कीमत में कमी से रसद में कमी वाक़ होती है, या दूसरे अल्फाज में कीमत में इजाफे से रसद फैलती है और कीमत में कमी से रसद सुकड़ती है, ये बात वाज़ेह होती है। तो अजीज तुल्बा व तालिबात, दीगर बातें हस्बे मामूल रहे, ये वो है, ये इस कानून के वो मफरूज़ात हैं या शराइत हैं जिनकी मौजूदगी में ये कानून जो है सही साबित होता है, वरना ये कानून जो है सही साबित नहीं होता। तो इस कानून के मफरूज़ात जो है, मफरूज़ात में सबसे पहले यहाँ पर लेंगे हम कि कीमत तब्दील नहीं होना चाहिए। कीमत तब्दील नहीं होना चाहिए। डॉक्टर माशर ने फर्ज किया है कि कीमत मामूल के मुताबिक रहना चाहिए, तब्दील नहीं होना चाहिए से मुराद ये है यहाँ पर कि कीमत मामूल के मुताबिक रहना चाहिए, कीमत में गैर मामूली तब्दीली नहीं वाक़ होनी चाहिए। अगर कीमत में गैर मामूली तब्दीली वाक़ होती है तो ये कानून जो है सही साबित नहीं होता। कीमत में गैर मामूली तब्दीली वाक़ होती है तो ये कानून जो है सही साबित नहीं होता, या इस कानून की सदाकत जो है मजरूह हो जाती है। तो अजीज तुल्बा व तालिबात, डॉक्टर माशर ने फर्ज किया है कि कीमत मामूल के मुताबिक रहना चाहिए। जब कीमत मामूल के मुताबिक रहेगी तो कीमत में इजाफे से रसद फैलेगी या रसद के अंदर फैलाव पैदा होगा और कीमत में कमी से रसद में सुकड़ाव पैदा होगा, यानी कीमत में इजाफे से रसद में इजाफा होगा और कीमत में कमी से रसद में कमी वाक़ होगी। तो इस तरह से ये कानून सही साबित होगा। लेकिन अगर शय की कीमत जो है गैर मामूली तौर पर अगर तब्दीली वाक़ होती है तो ये कानून जो है सही साबित नहीं होगा। अजीज तुल्बा व तालिबात, गैर मामूली तब्दीली वाक़ होने की बुनियाद पर ये कानून जो है सही साबित नहीं होगा। तो सिंपली हम इस पॉइंट को इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, देयर शुड बी नो चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, यानी शय की कीमत में किसी किस्म की तब्दीली वाक़ नहीं होना चाहिए। अगर शय की कीमत तब्दील होती है, मामूल से हटकर उसके अंदर तब्दीली वाक़ होती है तो ये कानून जो है सही साबित नहीं होगा। किस तरह से सही साबित नहीं होगा? अगर शय की कीमत मिसाल के जरिए आपको वाज़ेह करता हूँ कि किसी शय की कीमत जो है मामूल के मुताबिक 5 रुपये है, लेकिन इसकी कीमत में 100 रुपये हो जाती है इसकी कीमत, यह गैर मामूली तब्दीली है, यानी 95 रुपीस की तब्दीली वाक़ होती है। तो 95 रुपीस की तब्दीली वाक़ होने की बुनियाद पर क्या होगा, ये कानून जो है सही साबित नहीं होगा। यानी 95 रुपीस शय की कीमत में इजाफा होता है तो 5 रुपये कीमत पर जो है 5 रुपये कीमत, शय की कीमत जो है 5 रुपये है मामूल के मुताबिक, लेकिन उसमें गैर मामूली तब्दीली वाक़ होती है, वो 5 से 100 रुपये हो जाती है। तो 95 रुपीस में भी लोग क्या करेंगे, ज्यादा मिकदार खरीदेंगे, यानी ज्यादा प्राइस पर क्या होगा, ज्यादा प्राइस पर मांग ज्यादा होगी, यानी ज्यादा प्राइस करने का मतलब यह है यहाँ पर कि किसी शय की कीमत में गैर मामूली तब्दीली होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये कानून जो है सही साबित नहीं होगा। या इसको और आसान एग्जांपल के जरिए वाज़ेह कर सकते हैं कि जब शय की कीमत में गैर मामूली तब्दीली वाक़ होती है तो मुख्तलिफ अवामिल की वजह से होती है, क्योंकि अवामिल की कीमत में तब्दीली वाक़ होती है और अवामिल की कीमत में तब्दीली वाक़ होने की वजह से शय की कीमत में तब्दीली वाक़ होती है, शय की कीमत में तब्दीली वाक़ होती है। तो ये क्या होता है, ज्यादा कीमत पर भी यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा कीमत पर भी रसद कम होती है और कम कीमत पर रसद ज्यादा हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि शय की कीमत जो है मामूल के मुताबिक होना चाहिए। अगर शय की कीमत मामूल के मुताबिक
मुताबिक होगी तो ये कानून जो है सही साबित होगा, ये कानून जो है सही साबित होगा। और बहुत सारी एग्जांपल के जरिए इसको वाज़ेह किया जा सकता है इस पॉइंट को। तो इसलिए डॉक्टर मार्शल ने यहाँ फर्ज किया कि कीमत तब्दील नहीं होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि कीमत और रसद के दरमियान ताल्लुक है, फिर क्यों डॉक्टर मार्शल इस तरह से कहता है, या कहने का मतलब है ये है कि ये कानून क्यों इस तरह से कहता है, कि ये शर्त क्यों यहाँ मुकर्रर करता है या इस शर्त को क्यों यहाँ रखता है कि कीमत मामूल के मुताबिक रहना चाहिए, कीमत में किसी किस्म की तब्दीली वाकई नहीं होना चाहिए। अगर कीमत में गैर मामूली गिरावट आ जाती है तो आजिज़ नुकसान से दो चार हो जाता है। आजिज़ कम कीमत पर भी रसद कर देता है। कहने का मतलब यह है कि कम कीमत पर भी ज्यादा रसद कर देता है। जब कीमत के अंदर मुसलसल गिरावट होती है तो कम कीमत पर रसद ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आजिल का मकसद क्या होता है, नुकसान से बचना होता है। कम से कहने का मतलब यह है कि आजिल का मकसद जो है मुनाफा कमाना होता है। मुनाफा कमाने से मुराद नुकसान से बचना भी आजिल का एक मकसद होता है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, जब कीमत के अंदर मुसलसल गिरावट आती जाती है तो ऐसी सूरत में आजिल क्या करता है, कम कीमत पर रसद ज्यादा कर देता है, क्योंकि आने वाले दिनों में मजीद गिरावट पैदा, कीमत के अंदर गिरावट आएगी, मजीद कीमत कम होगी। इसलिए आजिल अपने नुकसान को कम करता है, इस सूरत में। तो अजीज तुलबा और तालिबात, इसलिए डॉक्टर मार्शल ने यहाँ फर्ज किया है कि कीमत मामूल के मुताबिक रहना चाहिए, कीमत में किसी किस्म की तब्दीली वाकई नहीं होना चाहिए। अगर कीमत में किसी किस्म की तब्दीली वाकई होती है, गैर मामूली तब्दीली वाकई होती है, तो ये कानून जो है सही साबित नहीं होता। दूसरा जो है पैदावार का पैमाना। पैदावार के पैमाने से मुराद वो पैमाना या वो इकाई जिसमें पैदावार की पैमाइश की जाती है, उसे पैदावार का पैमाना कहते हैं। अब डॉक्टर मार्शल ने यहाँ फर्ज किया है कि पैदावार का पैमाना तब्दील नहीं होना चाहिए। दरअसल हर अशिया और खिदमात की पैमाइश जो है मुख्तलिफ इकाइयों में की जाती है। जैसे हम देखते हैं जो दूध हम लीटर में लेते हैं, तेल, खाने का तेल, खोपरे का तेल हम लीटर्स में खरीदते हैं, इसी तरह से कपड़े हम मीटर्स में खरीदते हैं। इसी तरह से ये उसकी कपड़े की पैमाइश की इकाई जो है मीटर है, खाने के तेल की पैमाइश की इकाई जो है लीटर्स है, दूध की पैमाइश की इकाई जो है लीटर्स है, और गेहूं, चावल, शक्कर और मुख्तलिफ दालें जो हम लेते हैं किलोग्राम से लेते हैं, तो उसकी पैमाइश जो है, पैमाइश की इकाई जो है किलोग्राम है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, यहाँ पर डॉक्टर मार्शल ने फर्ज किया है, ये मफरूज़ा रखा है कि पैदावार का पैमाना तब्दील नहीं होना चाहिए, यानी पैदावार की पैमाइश जिस इकाई में की जाती है उसी इकाई में की जाना चाहिए, तब ये कानून जो है सही साबित होगा, वरना ये कानून जो है सही साबित नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर खाने का तेल किलोग्राम से हम लेते हैं हम। अब खाने का तेल अगर लीटर में इसकी पैमाइश की जा सकती है तो लीटर में की जाएगी, तो रसद जो है तब्दील हो जाएगी। जैसे कपड़े हम मीटर्स में खरीदते हैं, लेकिन कपड़े अगर किलोग्राम्स में इसकी पैमाइश की जाए तो रसद तब्दील हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये डॉक्टर मार्शल का कि पैदावार का पैमाना मामूल के मुताबिक होना चाहिए। अगर पैदावार का पैमाना तब्दील होता है तो ये कानून जो है सही साबित नहीं होता। किस सूरत में सही साबित नहीं होता कि ज्यादा कीमत पर रसद कम हो सकती है और कम कीमत पर रसद ज्यादा हो सकती है, जो इस कानून के खिलाफ है। इसलिए डॉक्टर मार्शल ने यहाँ फर्ज किया है कि पैदावार का पैमाना या पैदावार की पैमाइश जिस इकाई में की जाती है उसी इकाई में की जानी चाहिए। पैदावार की पैमाइश की इकाई तब्दील नहीं होना चाहिए या पैदावार का पैमाना तब्दील नहीं होना चाहिए। अगर पैदावार का पैमाना मामूल के मुताबिक होगा तो ये कानून जो है सही साबित होगा। तीसरा जो है पैदावारी तरीका। पैदावारी तरीका जिसको हम क्या कह सकते हैं, मेथड ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं। पैदावारी तरीका तब्दील नहीं होना चाहिए। अजीज तुलबा और तालिबात, पैदावार अशिया खिदमात की पैदावार जिस तरीके से की
जा रही है उसी तरीके से की जानी चाहिए। पैदावारी तरीका तब्दील नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैदावारी तरीका तब्दील होने से क्या होता है, तो पैदावारी लागत तब्दील होती है, और पैदावारी लागत तब्दील होने के नतीजे में शय की कीमत तब्दील होती है, और शय की कीमत तब्दील होने की वजह से रसद मुतासिर होती है, रसद तब्दील होती है। तो इसीलिए डॉक्टर माशा ने यहाँ फर्ज किया है कि पैदावारी तरीका मामूल के मुताबिक होना चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन प्रोडक्शन मेथड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या ऑफ कमोडिटी कह सकते हैं। अशिया और खिदमत की तैयारी में जो पैदावारी तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है वही पैदावारी तरीका इस्तेमाल होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की तब्दीली बाकी नहीं होना चाहिए। पैदावारी तरीका जैसे दो तरह के होते हैं पैदावारी तरीका, एक होता है ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन होता है, और एक होता है लेटेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, एडवांस मेथड ऑफ प्रोडक्शन होता है, जिसको हम जदीद पैदावारी तरीका कह सकते हैं, और ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन को हम रिवायती पैदावारी तरीका कह सकते हैं। ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जितना हम ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, उतनी रसद कम होगी, पैदावारी लागत ज्यादा होगी, और ज्यादा वक्त दरकार होगा। और जितना लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे पैदावारी तरीके के अंदर, या पैदावार के लिए जितना लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, वक्त कम दरकार होगा, पैदावारी लागत कम होगी, और रसद ज्यादा होगी। जब लेटेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा तो रसद ज्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, तो जाहिर सी बात है कम कीमत पर भी हाजिर रसद ज्यादा करने के काबिल होगा, यानी कम कीमत पर ज्यादा रसद होगी। और जितना ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन की तरफ हम जाएंगे तो अजीज तुलबा और तालिबात क्या होगा कि हम ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन की तरफ, रिवायती पैदावारी तरीके की तरफ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, और यानी कीमत बढ़ेगी, और कीमत ज्यादा होगी, कीमत ज्यादा पर रसद कम होगी, जो इस कानून के खिलाफ हो जाएगा। तो अजीज तुलबा और तालिबात, पैदावारी तरीका तब्दील नहीं होना चाहिए, पैदावारी तरीका मामूल के मुताबिक होना चाहिए। जब पैदावारी तरीका मामूल के मुताबिक होगा तो ये कानून सही साबित होगा। इसलिए डॉक्टर माशा ने यहाँ पर फर्ज किया है कि पैदावारी तरीका मामूल के मुताबिक होना चाहिए। अब उसके बाद जो है यहाँ पर और भी नुकात है, यहाँ लिख सकते हैं नक्ल अमल के इखराजात, नक्ल अमल के इखराजात यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तब्दील नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि नक्ल अमल के इखराजात जब तब्दील होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, नक्ल अमल के इखराजात जब तब्दील होते हैं तो क्या होता है, नक्ल अमल के इखराजात की तब्दीली की वजह से, या दूसरे अल्फाज में हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि नक्ल अमल के ज़राए की तब्दीली की वजह से क्या होता है, नक्ल अमल के इखराजात में कमी और बेशी होती है, और जिसकी वजह से कीमत मुतासिर होती है, और कीमत के मुतासिर होने से रसद मुतासिर होती है, रसद तब्दील होती है। इसलिए डॉक्टर माशा ने यहाँ फर्ज किया है कि नक्ल अमल के इखराजात जो है मामूल के मुताबिक होने चाहिए। नक्ल अमल के इखराजात मामूल के मुताबिक होंगे तो कीमत मामूल के मुताबिक होगी, और कीमत मामूल के मुताबिक होगी तो ये कानून जो है सही साबित होगा। अगर नक्ल अमल के इखराजात में ज़बरदस्त गिरावट आ जाए, नक्ल अमल के इखराजात में ज़बरदस्त इजाफा हो जाए तो क्या होगा, कीमत में ज़बरदस्त इजाफा और कीमत में ज़बरदस्त गिरावट होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, रसद मुतासिर होगी। तो इसलिए नक्ल अमल के इखराजात तब्दील नहीं होना चाहिए, नक्ल अमल के इखराजात जो है मामूल के मुताबिक होना चाहिए। और इसके अलावा दूसरा यहाँ पर और नक्ल अमल के ज़राए जब तब्दील होंगे, जैसे रोडवेज की बजाय अगर हम रेलवेज का इस्तेमाल होने लगे अशिया और खिदमत की मुंतकली के लिए, तो क्या होगा, नक्ल अमल के इखराजात में गिरावट आएगी, नक्ल अमल के इखराजात कम हो जाएंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा, अशिया और खिदमत की कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि अशिया और खिदमत की कीमत में नक्ल अमल के इखराजात शामिल होते हैं। तो अजीज तुलबा और तालिबात, ये दोनों नुकात आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो बेहतर तरीके से कि नक्ल अमल के इखराजात तब्दील नहीं होने चाहिए, नक्ल अमल के ज़राए तब्दील नहीं होना चाहिए। ज़राए से मुराद अशिया खिदमत की नक्ल मकानी, जिसका नक्ल मकानी के लिए जो ज़राए इस्तेमाल किया जाते हैं
किए जाते हैं उन्हें नकल अमल के ज़राए कहते हैं। जैसे रोड वेज है, एयर वेज है, वाटर वेज है, ये तो इन तरीके से वाटर वेज है, रेलवेज है, नकल अमल के 4 अहम ज़राए हैं जो रोड के जरिए, सड़कों के जरिए नकल अमल किया जाता है अशिया खिदमात का। रेलवेज के जरिए अशिया खिदमात की नकल मकानी की जाती है। इसके अलावा एयरवेज के जरिए अशिया खिदमात को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। इसके अलावा वाटरवेज समुद्री नकल अमल के समुद्री ज़राए या पानी के ज़राए जो है उसके जरिए अशिया खिदमात को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, नकल अमल के ज़राए भी अहमियत क्या मिल है, नकल अमल के ज़राए में भी तब्दीली वाक़ई नहीं होनी चाहिए। तो ये था, ये नंबर 4 था। और भी नुकात आप लिख सकते हैं यहाँ पर, तवक्कात नहीं होनी चाहिए। तवक्कात आजिज़ को मुस्तक़बिल के इम्कानात और ख़दशात नहीं होना चाहिए। अगर आजिज़ को ये मालूम हो जाए कि आज की बढ़ी हुई कीमत कल और बढ़ेगी, तो आज की बढ़ी हुई कीमत पर, आज की ज़्यादा कीमत पर वो रसद कम करेगा। कल जब कीमत और बढ़ जाएगी तो उस पर रसद ज़्यादा करेगा। अगर आजिज़ को ये खदशा हो जाए कि आज की कम हुई कीमत कल और कम होगी, शायद की कीमत कल और कम हो जाएगी, तो आजिज़ क्या करेगा, आज की कम कीमत पर रसद ज्यादा करेगा, जो इस कानून के खिलाफ है। तो अजीज तुलबा और तालिबात, आजिज़ को मुस्तक़बिल के इम्कानात और खदशात नहीं होना चाहिए। अगर आजिज़ को मुस्तक़बिल के इम्कानात और खदशात होंगे तो आजिज़ क्या होगा यहाँ पर कि ज्यादा कीमत पर रसद कम और कम कीमत पर रसद ज्यादा होगी, जो इस कानून के खिलाफ होगा। इसलिए डॉक्टर मार्शल ने यहाँ पर फर्ज किया है कि आजिज़ को तवक्कात नहीं होना चाहिए, मुस्तक़बिल के इम्कानात और खदशात नहीं होना चाहिए। नंबर 6 भी लिख सकते हो आप, खुद सर्फ, जिसको हम कह सकते हैं खुद सर्फ, ये भी वाज़ेह किया गया है। रसद को मुतासिर करने वाले अवामिल में ये पॉइंट वाज़ेह किया गया है। खुद सर्फ, जिसको सेल्फ कंजम्पशन कहते हैं, कि आजिज़ भी इंसान होता है, अशिया खिदमात की पैदावार करता है, तो वो अशिया खिदमात की पैदावार में से कुछ हिस्सा अपने सालाना इस्तेमाल के लिए महफूज कर लेता है और बाकी हिस्से की रसद कर देता है। जो हिस्सा पैदावार का, वो हिस्सा जो आजिज़ अपने इस्तेमाल के लिए रखता है, उसे खुद सर्फ कहते हैं। यानी उसके इस्तेमाल में आने वाली उसके इस्तेमाल में आने वाला खर्च या उसके इस्तेमाल में आने वाली अशिया और खिदमत कहते हैं। तो खुद सर्फ जब कम होता है, खुद सर्फ जो है मामूल के मुताबिक होना चाहिए। आजिज़ के खुद सर्फ में जब इजाफा होगा तो रसद में कमी वाक़ई होगी। आजिज़ के खुद सर्फ में जब कमी वाक़ई होगी तो रसद में इजाफा होगा। जैसे मैं एग्जांपल से इसको भी वाज़ेह कर सकते हैं कि एक किसान है और उसकी वाइफ है, यानी दोनों एक खेत के अंदर काम करते हैं, इस खेत के अंदर काम करते हैं और 1000 टन गेहूं की पैदावार करते हैं। बराबर है, ये 2 मेंबर है, फैमिली नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 2 है। एक किसान है, किसान की बीवी है, और किसान की बीवी दोनों खेत में काम करते हैं और 1000 टन गेहूं की पैदावार करते हैं। अब इस 1000 टन गेहूं में से ये 2 लोग हैं, खानदान की जसामत 2 है, तो यहाँ पर इनको सालाना यानी 100 टन जो है ये सालाना इस्तेमाल के लिए रख लेता है। तो अब 1000 में से 100 लेस किया जाए यहाँ पर, तो कितना आएगा हमारा 9900 टन जो होगा ये आजिज़ जो है बाजार में रसद करेगा, गेहूं की पैदावार जो है इसकी रसद करेगा। लेकिन अब खानदान की जसामत बढ़ जाती है, 2 बच्चे हैं इनके, 4 लोग हो गए, तो अब यहाँ पर इसका सर्फ भी बढ़ जाएगा, क्योंकि किसान अनाज की पैदावार करता है तो किसान भी अनाज का इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं होता है कि साबुन बनाने वाले फैक्ट्री का मालिक साबुन से नहीं नहाता, ऐसा नहीं होगा, उसे भी नहाने के लिए साबुन की ज़रूरत होगी। ग़िज़ा की पैदावार करने, ग़िज़ाई अजनास की पैदावार करने वाले किसान जो है वो भी ग़िज़ाई अजनास का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपनी पैदावार का कुछ हिस्सा जो है महफूज कर लेते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, इसे खुद सर्फ कहते हैं। तो पॉइंट पर आएंगे। अब खानदान की जसामत 2 से 4 हो जाती है, यानी खाने वालों की तादाद में इजाफा हो जाता है। तो अब आजिज़ 200 टन गेहूं, 1000 टन में से 200 टन गेहूं जो है क्या करता है, अपने इस्तेमाल के लिए रखता है। इस तरह से आजिज़ 1000 टन में से अगर निकाल दिया जाए 200 टन, तो यहाँ उसके 9000 कहना चाहिए
हाँ 1000 टन में से अगर निकाल दिया जाए 200 टन निकाल दिया जाए तो क्या होगा यहाँ पर 100 टन था, जब 2 लोग थे तो यहाँ पर 100 टन निकालता था 1000 टन में से, तो 900, कहने का मतलब ये है कि 900 टन जो है वो रसद करने के काबिल था। अब 4 लोग हो गए तो अब ये 100 की बजाय 200 निकालता है, तो ये अब यहाँ पर 800 टन जो है रसद करने के काबिल है। यानी जब खानदान की जसामत में इजाफा होता है, खाने वालों की तादाद में इजाफा होता है, तो खुद सर्फ में भी इजाफा होता है, और जब खुद सर्फ में इजाफा होता है तो रसद में कमी वाक़ई होती है, और जब खुद सर्फ में कमी वाक़ई होती है तो रसद में इजाफा होता है। तो कहने का मतलब ये था यहाँ पर कि खानदान, कहने का मतलब ये था कि खुद सर्फ में जब इजाफा होता है आजिर के तो रसद में कमी वाक़ई होती है, और खुद सर्फ में जब कमी वाक़ई होती है तो रसद में इजाफा होता है। इसलिए डॉक्टर माशा ने यहाँ फर्ज किया है कि खानदान की जसामत जो है मामूल के मुताबिक होना चाहिए। खानदान की जसामत मामूल के मुताबिक होना चाहिए। जब मामूल के मुताबिक होगी तो खुद सर्फ मामूल के मुताबिक होगा। तो डॉक्टर माशा ने यहाँ फर्ज किया है कि खुद सर्फ तब्दील नहीं होना चाहिए। अगर खुद सर्फ तब्दील होता है तो आजिज ज़्यादा कीमत पर भी रसद कम करेगा, और कम, जब खुद सर्फ जो है कम होगा तो कम कीमत पर भी रसद ज़्यादा कर सकता है, जो इस कानून के खिलाफ है। इसलिए डॉक्टर माशा ने यहाँ फर्ज किया है कि खुद सर्फ तब्दील नहीं होना चाहिए। There should be no change in self consumption। तो ये थे इस कानून के मफरूजात, और भी बहुत सारे मफरूजात हैं जो हम देख सकते हैं। नंबर 7 ले सकते हैं, आप बखूबी लिख सकते हैं इसको। क्या होना चाहिए? दीगर अशिया और खिदमात की कीमत में इजाफा, दीगर अशिया और खिदमात की कीमत जो है मामूल के मुताबिक होना चाहिए। दीगर अशिया खिदमात, दीगर अशिया और खिदमात की कीमत जब मामूल के मुताबिक होगी तो ये कानून जो है सही साबित होगा, वरना ये कानून जो है सही साबित नहीं होगा। दीगर अशिया से मुराद यहाँ पर ये है कि मुआविन और मुतबादिल अशिया है। मुआविन और मुतबादिल अशिया की कीमत जब मामूल के मुताबिक होगी, या मुताल्लिका अशिया की कीमत, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मुताल्लिका अशिया की कीमत मामूल के मुताबिक होना चाहिए। मुताल्लिका अशिया की कीमत जब मामूल के मुताबिक होगी तो ये कानून जो है सही साबित होगा, वरना ये कानून जो है सही साबित नहीं होगा। मुताल्लिका अशिया में 2 तरह की अशिया है, एक मुआविन अशिया है जिसको हम मुआविन अशिया, जिसको एक दूसरा जो है मुतबादिल अशिया जिसको सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है, इसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाता है। मुआविन अशिया तो ऐसी अशिया जो एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो, ऐसी अशिया और खिदमात की कीमत मामूल के मुताबिक होना चाहिए। मुतबादिल अशिया जैसे एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होने वाली अशिया मुतबादिल अशिया कहलाती है। तो मुताल्लिका अशिया की कीमत जब मामूल के मुताबिक रहेगी तो ये कानून जो है सही साबित होगा, या दीगर अशिया और खिदमात की कीमत जब मामूल के मुताबिक होगी तो ये कानून जो है सही साबित होगा। जैसे बाजार के अंदर अगर राइस की कीमत ज़्यादा होती है, राइस में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो किसान जो है गेहूं की बजाय राइस की पैदावार करेगा, क्योंकि उस किसान की काजी का मकसद जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना होता है। तो गेहूं की कीमत जो है कम हो, कहने का मतलब ये है कि गेहूं की बजाय वो राइस की पैदावार करेगा। तो तमाम हाजिरीन जो है गेहूं की बजाय जब राइस की पैदावार करेंगे तो कीमत क्या होगा, रसद ज़्यादा होगी, पैदावार ज़्यादा होगी। नतीजतन दूसरी अशिया और खिदमात की किल्लत पैदा हो जाएगी। जैसे गेहूं की किल्लत पैदा हो जाएगी तो गेहूं की कीमत पर दबाव ऊपर की जानिब बनेगा, तो गेहूं की कीमत ज़्यादा होने के बावजूद उसकी रसद ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, इसीलिए कहा गया है कि दीगर अशिया और खिदमात या मुताल्लिका अशिया और खिदमात की कीमत जो है मामूल के मुताबिक होना चाहिए। जब मुताल्लिका अशिया और खिदमात की कीमत मामूल के मुताबिक होगी तो ये कानून जो है सही साबित होगा। ये थे हमारा नंबर 7 पॉइंट। और भी बहुत सारे नुकात हैं, जैसे हुकूमत की पॉलिसी, हुकूमत की हिकमत अमली या पॉलिसी जो है तब्दील नहीं होना चाहिए। हुकूमत की कहना चाहिए, हुकूमत की यहाँ पर नंबर 8 लेंगे हम, टैक्सेशन पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, या इसको हुकूमत की पॉलिसी लेंगे।
हुकूमत की पॉलिसी तब्दील नहीं होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत की पॉलिसी तब्दील होगी तो रसद तब्दील होगी। हुकूमत की पॉलिसी तब्दील होगी तो रसद तब्दील होगी। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर हुकूमत की पॉलिसी मामूल के मुताबिक होना चाहिए जब ये कानून जो है सही साबित होगा। और भी नुकात लिख सकते हो आप, यहाँ पर लिख सकते हो जैसे अवामिल की दस्तयाबी। अवामिल की दस्तयाबी जब होगी बआसानी होगी तो रसद में इजाफा होगा, और अवामिल की दस्तयाबी जब बआसानी नहीं होगी तो रसद में कमी वाक़ होगी। इसलिए अवामिल की दस्तयाबी भी मामूल के मुताबिक होना चाहिए। अवामिल की दस्तयाबी जब मामूल के मुताबिक होगी तो क्या होगा, रसद ज़्यादा मामूल के मुताबिक होगी तो ये कानून जो है सही साबित होगा। अगर अवामिल की दस्तयाबी गैर मामूली हो जाती है या अवामिल की दस्तयाबी में अचानक इजाफा हो जाता है तो क्या होता है कि रसद क्या होता है, कम कीमत पर रसद ज़्यादा हो जाती है। और अगर अवामिल की दस्तयाबी में अचानक शदीद कमी वाक़ हो जाएगी तो कम कीमत पर भी रसद कम होगी, तो अवामिल की दस्तयाबी भी मामूल के मुताबिक होना चाहिए। अवामिल की दस्तयाबी से मुराद यहाँ पर यह है कि पैदावारी अवामिल की दस्तयाबी, जैसा कि आपको बताया गया है कि पैदावारी अवामिल 4 अहम पैदावारी अवामिल है, मेहनत, ज़मीन, सरमाया और मुल्तज़िम। ये पैदावारी अवामिल है, ये अपनी पैदावारी सरगर्मी अंजाम देकर अशिया खिदमात की पैदावार करते हैं, तो अवामिल की दस्तयाबी मुतासिर नहीं होना चाहिए या मामूल के मुताबिक होना चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज, यानी नो चेंज, जो उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं होना चाहिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की दस्तयाबी में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होना चाहिए, मामूल के मुताबिक होना चाहिए। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की दस्तयाबी मामूल के मुताबिक होगी तो ये कानून जो है सही साबित होगा। और भी लिख सकते हो आप नंबर 10, और भी बहुत सारे नुकात हैं आप लिख सकते हो जो रसद को मुतासिर करने वाले अवामिल है, जैसे कुदरती अवामिल। कुदरती हालात तब्दील नहीं होना चाहिए, कुदरती हालात मामूल के मुताबिक होना चाहिए। कुदरती हालात जब मामूल के मुताबिक होंगे तो अशिया और खिदमात की पैदावार जो है मामूल के मुताबिक होगी, अशिया और खिदमात की कीमत मामूल के मुताबिक होगी। लेकिन कुदरती हालात जब मामूल के मुताबिक नहीं होंगे तो अशिया और खिदमात की पैदावार कम होगी, अशिया और खिदमात की पैदावार कम होगी, ज़्यादा कीमत पर भी आजिल जो है ज़्यादा रसद नहीं कर सकेगा। कुदरती हालात से मुराद यहाँ पर ये है कि वो हालात जो कुदरत की तरफ से पैदा करता है, जैसे शदीद बारिश की वजह से फसलें खराब हो जाती है, शदीद तूफान की वजह से, तूफानी हालात की वजह से फसलें खराब हो जाती है, वबाई अमराज के फैल जाने की वजह से अशिया और खिदमात की रसद नहीं होने पाती, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाने की वजह से ग़िज़ाई अजनास की किल्लत पैदा हो जाती है, ज़्यादा कीमत पर भी रसद ज़्यादा नहीं होने पाती। तो ये कुदरती हालात हैं, कुदरती हालात मामूल के मुताबिक होना चाहिए। कुदरती हालात जब मामूल के मुताबिक होंगे तो ये कानून जो है सही साबित होगा, वरना ये कानून जो है सही साबित नहीं होगा। उसके बाद हम कुदरती हालात के अलावा हम ले सकते हैं कि मौसमी हालात मामूल के मुताबिक होने चाहिए। मौसमी हालात जब जैसे अशिया खिदमात की पैदावार के लिए एक मखसूस मौसम की ज़रूरत होती है, मखसूस जैसे कि किसान बीज बोता है, बीज बोने के बाद पानी की ज़रूरत होती है, एक मखसूस क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत होती है, उसकी गेहूँ, चावल और इन तमाम चीज़ों की पैदावार के लिए एक मखसूस क्लाइमेटिक कंडीशन की पैदावार कहना चाहिए कि ज़रूरत होती है। जब क्लाइमेटिक कंडीशन फसलों के लिए फेवरेबल होते हैं तो क्या होता है, अशिया खिदमात की पैदावार ज़्यादा होती है, यानी रसद ज़्यादा होती है। जब क्लाइमेटिक कंडीशन जो है यानी मौसमी हालात जो है अशिया और खिदमात के लिए नामुवाफिक होते हैं, गैर मौजू होते हैं, तो अशिया और खिदमात की पैदावार कम होती है। अशिया और खिदमात की पैदावार का कम होना यानी रसद का कम होना है। इसलिए डॉक्टर माशा ने यहाँ पर फर्ज किया है कि मौसमी हालात जो है मामूल के मुताबिक होना चाहिए। मौसमी हालात के अंदर अगर तब्दीली वाक़ होगी तो अशिया और खिदमात की रसद मुतासिर होगी, जिसके नतीजे में कम कीमत पर रसद ज़्यादा होगी और ज़्यादा कीमत पर रसद कम होगी। इसके अलावा जंग है, खुशफसाली है, कहत जिसको हम कहते हैं, कहत होता है यानी सूखा पड़ जाना, फसलें खराब हो जाना, अनाज की किल्लत पैदा हो जाना,
ये सब हालात जो ऐसे हैं, या फिर तालाबंदी, इंडस्ट्रीज के अंदर तालाबंदी कहना चाहिए, इंडस्ट्रीज के अंदर तालाबंदी, स्ट्राइक, हड़ताली, ये तमाम चीज़ें जो है रसद को मुतासिर करती है। तो ये तमाम अवामिल जो है, ये तमाम चीज़ें जो है रसद को मुतासिर करती है। इसलिए डॉक्टर मार्शल ने यहाँ पर अर्ज किया है कि हालात, मुल्की हालात जो है मामूल के मुताबिक होना चाहिए। मुल्की हालात मामूल के मुताबिक होंगे तो अशिया और खिदमात की रसद होगी, रसद मामूल के मुताबिक होगी और ये कानून जो है सही साबित होगा। मुल्की हालात अगर मामूल के मुताबिक नहीं होंगे तो अशिया और खिदमात की रसद मुतासिर होगी और ये कानून जो है सही साबित नहीं होगा। तो ये डॉक्टर मार्शल ने इस तरह से फर्ज किया है। तो यहाँ पर अहम नुक्ता जो है हुकूमती पॉलिसी, यानी हुकूमत की टैक्स पॉलिसी मामूल के मुताबिक होना चाहिए। टैक्सेस के शरे जो है मामूल के मुताबिक होगी तो ये कानून जो है सही साबित होगा। टैक्स जब ज़्यादा आयद किया जाएगा तो क्या होगा, अशिया और खिदमात की कीमत ज़्यादा होगी, अशिया और खिदमात की कीमत ज़्यादा होगी, और टैक्स की शरह जब कम होगी तो अशिया और खिदमात की कीमत कम होगी। तो हुकूमती पॉलिसी भी रसद को मुतासिर करती है। इसलिए डॉक्टर मार्शल ने हुकूमती पॉलिसी जो है मामूल के मुताबिक होना चाहिए। मौसमी हालात, कुदरती हालात, ये सब मामूल के मुताबिक होना चाहिए। मुल्की हालात मामूल के मुताबिक होना चाहिए। मुल्की हालात से मुराद मुल्की हालात जो मामूल के मुताबिक रहेंगे, या इमरजेंसी हंगामी हालात होंगे, हंगामी हालात के वक्त क्या होगा, रसद मुतासिर होगी। वबाई कहने चाहिए, हड़ताल और तालाबंदी की वजह से पैदावार मुतासिर होती है, रसद मुतासिर होती है। तो इसलिए डॉक्टर मार्शल ने इन तमाम मफरूज़ात को रखा है ताकि ये कानून जो सही साबित हो जाए। इन तमाम मफरूज़ात, इन तमाम शराइत की मौजूदगी में ये कानून जो है सही साबित होता है, वरना ये कानून जो है सही साबित नहीं होता। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, ये तमाम लॉ कानून रसद है। कानून रसद किसे कहते हैं? कानून रसद के मफरूज़ात बयान कीजिए। इन तमाम मफरूज़ात को बयान करते हुए आपको आना चाहिए। इन तमाम मफरूज़ात को आप आसानी बयान कर सकते हैं, वाज़े कर सकते हैं। तो ये तमाम मफरूज़ात हैं, इन तमाम मफरूज़ात को ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर इस तरह से सवालात पूछे जाते हैं। बड़े सवालात के कानून रसद की वजाहत कीजिए और उसके मफरूज़ात बयान कीजिए। तो आप इसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, बेहतर तरीके से इसकी पेश कर सकते हैं अजीज़ तलबा और तालिबात। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।